Good morning, students. Today we are starting continue with computer system and organizations. So before starting the today's class, let us recap what we have studied in previous lecture. So in previous class we have studied about introduction of computer system, and in introduction we have discussed about basic principle of computer, that is uh, I IPOS IPOS, that is basic principle: input, process, output, and storage. Then different type of your input unit, standard input unit, then processing unit. In processing unit we have discussed about your uh, CPU, and what are the different component of our CPU. We have discussed about control unit and arithmetic logic unit. Then storage, output unit. In output unit we have discussed about your uh, different type of output unit, like standard output unit, your monitor, then your printers, that is hard copy output device, and storage we can use the primary and secondary storage device. Then evolution of computers, when our first computer was developed, the brief history of the computers. Then computer memory, we have started with computer memory, how the data will store in computers. So let us start. Today we will start with our topic, computer memory. In computer memory we will discuss the different type of memory, and then data transfer between the memory and CPU, data and information, microprocessors. So these are the topic today we will discuss. So let us start with your computer memory. Computer memory to store data and instructions for the processing. When we talking about the memory of a computer, we are usually talking about the main or the primary memory. Here the primary memories, we will discuss about the RAM and ROM. Then secondary memory is called your storage device. Storage device, you have generally we are discussing about the, in our system we have storage device, that is hard disk drive. Okay, these are the internal. Then in case of external, we can use your CDs, DVDs, and pen drives. So now, unit of memory. A computer system use a binary number to store a data and process data. The binary digits are 0 and 1, which are the basic unit of memory, is called your bits. So we can say the smallest unit of memory is bit. Bit consists of only two digits, 0 and 1. 0 and 1. So now when 0 and 1 group together, it form a word, and a bit of word is known as your nibble. How many bits are there in a nibble? We can say 4 bit in a nibble, or a 4 bit become a nibbles. Then after that we can talking about a byte. Okay? A byte, we have a combination of 2 bits. 2 bits, that is 8 bit. 8 bit is equal to 1 byte. So 1 byte. So this is the here is the table for a different type of your measuring unit of data, KB, kilobyte, एंड इस दिस 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट. अब इसको हम जनरली यहाँ पे 1024 बाइट्स जो स्टैंडर्ड है, और अदरवाइज हम इसको 1000 बाइट के साथ हम क्या है इसको 1 KB को कंसीडर करते हैं. ठीक है. देन 1 MB इज इक्वल टू MB मेगाबाइट, 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB. देन आफ्टर दैट वी हैव GB, गीगाबाइट. 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB. अब यहाँ पे आ जाएगा तो हम इसको क्या लिखेंगे, 10⁻³ इज इक्वल टू
1 GB. Then terabyte is equal to 1 TB is equal to 1024 GB. Then petabyte, 1 petabyte is equal to 1024 terabyte. Then EB, exabyte. Exabyte is 1 EB is equal to 1024. Then ZB, zettabyte, 1 ZB is equal to 1024 exabyte. Then by B, yottabyte, yottabyte is equal to 1 yottabyte is equal to 1024 zettabytes. तो अभी एट प्रेजेंटली जो हमारे पास जो सिस्टम आ रहे हैं, चाहे हमारे डेस्कटॉप हैं चाहे लैपटॉप हैं, वो दे आर इन द कैपेसिटी ऑफ 1 TB हार्ड डिस्क. ठीक है, तो ये हमारे पास रहता ही है. अब इसके ऊपर देखिए यहाँ पे कितना कि 1 TB का हमारे पास इतनी स्टोरेज रहती है कि उसको हम भी पूरा यूज नहीं कर पाते. देन पेंटाबाइट, गीगाबाइट, ये हमारे पास बहुत हायर एंड के ऊपर ये यूज होते हैं. Then next we have type of memory. We have also discussed what your primary memory is. This is an essential part of your computer system. So programs data are loaded into a primary memory before processing it. कि हमारी प्रोसेसिंग से पहले क्या होगा, प्राइमरी मेमोरी क्या होगी, लोड. ठीक है, तो CPU interact directly with the primary memory to perform the read and write operations. So it is of two types, RAM and ROM. So as you know, full form of RAM is equal to random access memory and ROM is equal to read only memory. Then third type हमारे पास आती है कैशे memory. ठीक है, so further RAM is faster and secondary storage है, but no as fast as a कंप्यूटर प्रोसेस. अब कहने का मतलब क्या है कि रैम भी हमारे पास है, मतलब फास्ट है, लेकिन जो हमारा कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है इसके बीच में ये फास्ट नहीं है. कौन सी रैम? तो अब सो बिकॉज रैम इज़ अ CPU हैव अ टू स्लो डाउन. अब आपने क्या करना है कि अपने CPU की प्रोसेसिंग स्पीड को इंक्रीज करना है. तो ये जो हमारे पास कैसे मेमोरी है, स्पीड अप द ऑपरेशन ऑफ योर CPU. जो CPU के ऑपरेशन है उनको क्या करेगी, स्पीड अप करेगी. अ वेरी हाई स्पीड मेमोरी इज प्लेस बिटवीन CPU एंड प्राइमरी मेमोरी इज नोन एज योर कैशे मेमोरी. कहने का मतलब क्या है, CPU और प्राइमरी मेमोरी से रोम के बीच में, ठीक है, उसको स्पीड अप करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं कैशे मेमोरी. देन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज नॉन वॉलेटाइल. जैसे मैंने बताया था ये कौन से हैं, नॉन वॉलेटाइल डिवाइस हैं, एंड हैज़ अ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी देन द प्राइमरी मेमोरी. ठीक है, अब इट इज़ अ स्लोअर एंड चीपर देन मेन मेमोरी. ठीक है, बट कैनॉट एक्सेस डायरेक्टली बाय द CPU. द कंपोनेंट ऑफ द सेकेंडरी नीड्स टू बी फर्स्ट ब्रॉट इनटू द मेन मेमोरी सो फॉर CPU टू एक्सेस. कि जब भी हमारे पास इसमें होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सेस करने के लिए CPU की इसमें इसको लेके आना पड़ेगा. तो ये क्या है, जहाँ हमारे पास एक्सटर्नल जो पोर्ट रहते हैं हमारे CPU के अंदर, उसके अंदर से पेन ड्राइव को आपने यूज़ करना है तो पेन ड्राइव पर उसके वाले में आप यूज़ कर देंगे. DVD CD के अंदर है तो वहाँ पे आप यूज़ कर लेंगे. ठीक है, अब ये जो हमारे पास है मेमोरी कार्ड, ठीक है, ये मेमोरी कार्ड की बात करते हैं और ये SSD कार्ड की बात करते हैं. तो ये जो डिवाइस हैं ये स्टोरेज के काम के लिए है. और मोस्टली हम लोग ये जो हैं कि जो मेमोरी कार्ड है ये तो हम स्मार्टफोन के अंदर यूज़ कर लेते हैं मोस्टली. और ये जो सॉलिड स्टेट मेमोरी है ये हम लोग जो हमारे पास जो आपके और भी डिवाइस हैं, जैसे भी हम बात करते हैं डिजिटल कैमरा की बात करते हैं, या हम लोग बात करते हैं वीडियो वाले जहाँ पर अपने स्टोर, तो वहाँ पे हम SSD कार्ड को यूज़ कर लेते हैं. तो सेकेंडरी स्टोरेज में हमारे पास जो है कि हार्ड ड्राइव जो डिस्क है वो हमारे सिस्टम के अंदर बिल्ट इन है, जिसके अंदर डाटा स्टोर हम करते हैं. अब
इसमें भी हम बात करते हैं कि जो हार्ड डिस्क है ये एक तो इंटरनल रहती है एक एक्सटर्नल रहती है। इंटरनल तो हमारे सिस्टम के अंदर बिल्ट इन रहती है, लेकिन एक्सटर्नल के लिए हमारे पास कि जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव आप यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर डाटा स्टोर कर सकते हैं और बाद में उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। सीडीज़ आपने यूज़ की हुई देखी हुई हैं, ठीक है, स्टोरेज पर्पज़ के लिए मेमोरी कार्ड्स, ठीक है। तो मोस्टली आजकल हम क्या यूज़ करते हैं, मेमोरी कार्ड या जो बिल्ट इन हमारे उसमें मेमोरी है, या मोस्टली हम पेन ड्राइव को यूज़ कर लेते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव योर डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन द मेमोरी एंड सीपीयू। इंपॉर्टेंट है कि ये जो सीपीयू है इसके अंदर डाटा ट्रांसफ़र कैसे होगा। तो आप जब डाटा ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो डाटा ट्रांसफ़र के लिए हमें हमारे पास कोई ना कोई मीडियम चाहिए जिसके थ्रू हम डाटा कहाँ से, मेमोरी से आप हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर ट्रांसफ़र करें। तो उसके ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट यूजिंग द फिजिकल वायर, ठीक है। फिजिकल वायर इज कॉल्ड योर बस, ठीक है। तो ये है जो डाटा ट्रांसफ़र के लिए हम यूज़ करते हैं, वो बस हम यूज़ करते हैं। अब ये जो बस है, ठीक है, वायर के केस में, ठीक है, अगर पहले वाले सिस्टम होंगे तो उसके अंदर हम आप दे सकते हैं, लेकिन आजकल ये जो है कि ड्यू टू द अपग्रेडेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी वी आर यूजिंग साटा केबल्स, ठीक है। साटा केबल जो होगा वो हम क्या करेंगे, डाटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़। अब साटा केबल ही हमारे पास क्या होगा कि इसके अंदर जो डाटा रहेगा, ठीक है, जो डाटा ट्रांसफ़र रहेगा वो डिफरेंट टाइप की होगा। एक हमारे पास डाटा बस के अंदर ट्रांसफ़र डाटा विद इन द डिफरेंट कंपोनेंट। देन एड्रेस बस टू ट्रांसफ़र डाटा बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। अब देखिए अलग अलग रोल है हमारे पास। जो डाटा बस है वो ट्रांसफ़र करेगी डाटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट, ठीक है। और जो एड्रेस बस है ये ट्रांसफ़र की डाटा ट्रांसफ़र एड्रेस बिटवीन द CPU and main memory. The address of the memory location is that CPU want to read or write to a specific address. Then third है हमारे पास कंट्रोल बस communicate the control signals and between the different component. अब देखिए CPU है, ये देखिए कंट्रोल बस है, ये हमारे डाटा बस है। तो हर एक का जैसे हम ये CPU की बात करते हैं तो CPU क्या करेगा, जो है वो किसके साथ कांटेक्ट करेगा, एड्रेस के साथ, ठीक है, और किसके साथ, डाटा बस के साथ, ठीक है। तो मतलब है कि मेमोरी पहले कंट्रोल बस के साथ करेगी, फिर हमारे पास एड्रेस बस के साथ, और फिर क्या है, डाटा बस के साथ। तो ये पूरा का पूरा इस ढंग से हमारे पास है कि अब पहले के प्रोसेसिंग के लिए क्या होगा, कंट्रोल बस के पास जाएगा, एड्रेस बस के पास जाएगा और डाटा। अब तीनों का क्या काम है कि जो हम बात करते हैं डाटा बस की, तो डाटा बस क्या करेगा, डिफरेंट कंपोनेंट के पास डाटा को भेज देगा, और एड्रेस बस क्या करेगी कि उसको क्या करेगी, मेन मेमोरी में ले जाएगी। ये जो है एड्रेस बस कहाँ ले जाएगी, मेन मेमोरी के अंदर। और जो हमारे पास कंट्रोल बस है वो कंट्रोल द सिग्नल बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर्स। ये कि कौन से कंपोनेंट का सिग्नल उसको कंट्रोल करके रखेगी। Then next we have your microprocessor, processor which is implemented on the single microchip, on a single microchip called microprocessor. Nowadays almost all the CPU are microprocessors, ठीक है, कि जितने हमारे पास CPU है उसके अंदर क्या है, माइक्रोप्रोसेसर बिल्ट इन है। Microprocessor is small size electronic component inside your computers that carry out the various tasks involved in the data processing as well as arithmetic logic operations, ठीक है। So these days microprocessor are built over an integrated सर्किट, जिसको आप बोलते हैं IC, कंपेराइजिंग ऑफ मिलियंस ऑफ स्मॉल कंपोनेंट लाइक योर रजिस्टर, ट्रांजिस्टर एंड डायोड्स। अब ये सारे के सारे जो कंपोनेंट, रजिस्टर है, डायोड है, ट्रांजिस्टर किसके अंदर रहेगा, एक सिंपल IC के अंदर। कौन से, जो इंटीग्रेटेड सर्किट रहेगा उसके अंदर रहेगा। सो माइक्रो प्रोसेसर हैव इवॉल्व्ड ओवर टाइम इन टर्म ऑफ देयर increased processing capability and de-addressing the physical size reduced to the cost.
कि माइक्रो प्रोसेसर है, ये क्या करेगा हमारे पास कि इवॉल्व ओवर टाइम एंड टाइम इन टर्म ऑफ योर देयर इंक्रीज प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी डिक्रीज द फिजिकल साइज, कि जो हमारे पास इसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज होती जा रही है और जो फिजिकल साइज है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस, मतलब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। उससे क्या हो रहा है, कॉस्ट हमारे पास कम हो रही है। ये हमारे पास कुछ है प्रोसेसर, ठीक है, जिनकी आप देखेंगे फर्स्ट जनरेशन में जो प्रोसेसर था वो 1971 से लेकर 73 तक, और इसमें जो था वो LIC, इसको LIC बोलते हैं, लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस। और इसके अंदर जो साइज़ था वो था 4 और 8 बिट का, ठीक है। मैक्सिमम जो मेमोरी साइज़ थी तो 1 KB की थी। 1 KB का मतलब क्या होगा कि सिंपल जो पहले वाले प्रोसेसर थे कितने, 10 कितना 24 बाइट, इतनी उसकी स्टोरेज थी। और क्लॉक की स्पीड थी 108 किलोहर्ट्ज़ से लेके 200 किलोहर्ट्ज़। कोर जो क्या सिंगल कोर था, और एग्जांपल है इंटेल 8080। अब सेकंड जनरेशन में 74 से लेकर 78 में जो चिप थी वो LIC थी, उसमें 8 बिट थे, और मेमोरी कितनी थी हमारे पास 1 MB। अब अप टू कितना था, 2 मेगाहर्ट्ज़, और इसमें जो प्रोसेसर थे मोटोरोला 6800 और इंटेल 8085। थर्ड जनरेशन के अंदर हमारे पास जो था 79 से 80, इसके बीच में जो हमारी जो चिप का साइज हो गया BLSI क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस। इसके अंदर जो बर्ड साइज था वो 16 बिट था, और मेमोरी कितनी थी 16 MB की। और जो साइज़ थी क्लॉक साइज़ वो था 4 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 6 मेगाहर्ट्ज़। और ये था हमारे पास, इसमें भी कोर कौन सा, सिंगल और इंटेल 8086। फोर्थ जनरेशन 1985 से लेकर 1995 में, इसमें भी हमारे पास जो चिप थी वो BLSI थी, और अब इसमें कितना है 32 बिट, ठीक है। मेमोरी 4 GB, और अप टू कितना 133 मेगाहर्ट्ज़ सिंगल, और इंटेल 80386 और मोटरोला 68035। इस फिफ्थ जनरेशन 95 से जो टिल डेट है हमारे पास, इसमें है SLSI, और इसके अंदर जो हमारे पास ये है साइज़ जो है वो 64 बिट का, और मेमोरी कितनी है 64 GB, और जो क्लॉक है वो 533 मेगाहर्ट्ज़ से लेके 34 गीगाहर्ट्ज़। और इसमें जो प्रोसेसर हैं वो क्या है, मल्टी कोर में आपने सुना होगा ड्यूल कोर, क्वाड 2 कोर, ठीक है। तो इस ढंग से प्रोसेसर, और पेंटियम और सेलेरॉन जेनॉन्स, ये इस कैटेगरी के प्रोसेसर है। तो अब तो आपने देखा होगा कि आजकल तो टाइम हमारे पास कौन सा है, कोर i है, i3 है, i5 है, i7 है, और अभी लेटेस्ट आप भी लोग बता रहे थे कि क्या है, कोर i9 भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो ये डिफरेंट टाइप की जो जनरेशन थी और डिफरेंट टाइप के प्रोसेसर के हिसाब से हमारे पास इसमें ये रहेगा। देन नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ योर डिफरेंट क्या है फीचर्स विच इंक्लूड द चिप टाइप, बर्ड साइज, मेमोरी साइज एंड क्लॉक साइज। ये आपने टेबल के अंदर देखा कि इस ढंग से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन सा जनरेशन का कौन सा प्रोसेसर। देन वी हैव योर माइक्रो कंट्रोलर्स। सो माइक्रो कंट्रोलर इज द स्मॉलेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस विच हैज़ अ CPU फिक्स ऑन अ RAM, ROM and other peripherals, all embedded on the single chip as a component to a microprocessor that has only a CPU on a chip। अब ये देखिए, ये है चिप, इसमें क्या है, क्लॉक है, CPU है, ये बसेस हैं, और ये मेमोरी है, ठीक है, ये आउटपुट है, ये IO पोर्ट है, जो इनपुट आउटपुट के जो हमारे पास पोर्ट रहते हैं। देन डाटा एंड इंफॉर्मेशंस, अ कंप्यूटर इज primarily for the processing data, so computer system considered a everything is a data, can be instruction, picture, song, video and document। हमारे पास कंप्यूटर के अंदर क्या है कि वो हर एक चीज़ को वो क्या कंसिडर करता है, डाटा, चाहे हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन है, पिक्चर है, सॉन्ग है, वीडियो है या डॉक्यूमेंट है। डाटा एंड इट्स टाइप, सो कंप्यूटर हैज़ many input device which provide it with the raw data in the form of your fact, concept, instructions, etc. Internally everything is stored in a
बाइनरी, दैट इज 0 और 1 के फॉर्म में रहेगा। बट एक्सटर्नली द डाटा कैन बी इनपुट टू अ कंप्यूटर in the form of your text consisting of English alphabet A to Z and small a to Z, number 0 to 9 and special symbol that is your @ etc. अब इसमें यह आता है, इसको बोलते हैं कौन सा अल्फ़ाबेटिकल डाटा, इसको बोलते हैं न्यूमेरिक डाटा, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग स्पेशल सिंबल। और एक हमारे पास रहता है अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा। अल्फ़ा न्यूमेरिक में क्या रहेगा, हमारे पास सिंबल भी रहेंगे, अल्फ़ाबेट भी रहेंगे और करेक्टर, स्पेशल करेक्टर भी रहेंगे। उसको बोलेंगे हम कौन सा डाटा। तो नेक्स्ट वी हैव योर डाटा एंड इंफॉर्मेशन में प्रिलिमिनरी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डाटा, स्ट्रक्चर्ड डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। स्ट्रक्चर्ड डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड, आप स्ट्रक्चर्ड डाटा की जैसे नाम स्पेसिफाई कर रहा है कि डाटा हमारा एक प्रॉपर ऑर्डर में क्या होगा, डिस्प्ले होगा, ठीक है। सो the data which is recorded structure and it is easily to be compressed is called your structured data. Such data are predefined, जैसे है एक सिस्टमेटिक हमारे टेबुलर फॉर्म के अंदर ये डाटा रहेगा, ठीक है। जैसे रोल नंबर है, हमारे पास नेम है, मंथ है और अटेंडेंस इन परसेंटेज। तो देखिए आप हमारे पास ये डाटा क्या है, सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर के रोल नंबर के अंदर रोल नंबर है, नेम के अंदर पूरे नेम है और मंथ के अंदर हमारे पास मंथ है और अटेंडेंस के अंदर अटेंडेंस हमारे पास परसेंटेज में अटेंडेंस है। देन वी हैव योर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, ठीक है, और अनऑर्गेनाइज्ड डाटा। सो इसमें जो हमारे पास है कि so unstructured data which are not organized in a predefined record format is called unstructured data. Example including the audio and video files, graphics, text documents, social media post, सैटेलाइट इमेजेस एक्सेट्रा, ये हमारे पास रहेंगे अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में। तो ये हम बात करते हैं कि किस अटेंडेंस के रिकॉर्ड में, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि देखिए कोई भी स्ट्रक्चर्ड नहीं है, यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड है कि क्या है, अलग अलग ढंग से हमारे पास डाटा ये रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। सो डाटा विच हैव अ नो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर बट मेंटेन इटर्नल टैग फॉर मेकिंग टू सेपरेट डाटा एलिमेंट आर कॉल्ड योर सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। एग्जाम्पल आपके पास है ईमेल का डाटा हमारे पास है, HTML का पेजेस हैं और CSV की जो जितनी हमारी फाइलें हैं, ये हमारा एग्जाम्पल है कौन सा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा का। देन डाटा कैप्चरिंग स्टोरेज एंड रिट्राइवल्स। टू प्रोसेस डाटा वी नीड टू फर्स्ट इनपुट और कैप्चर द डाटा, सो दिस इज फॉलोड बाय द stored in a file and file or a database। अब इसमें एक टर्म हमारे पास नहीं आ गई, डाटाबेस। अब डाटाबेस के अंदर क्या हम डाटा की स्टोरेज करेंगे, चाहे हमारे पास
ओपन सोर्स डाटा हो या हमारे पास स्टैंड ऑन डाटा बेस हो, so that we can use in futures. So whenever data is to be processed, first it retrieve from the file or the database, so that when we can perform further actions. कि डाटा अगर हमने क्या किया है, स्टोर किया है, तो स्टोर करने के बाद ही हम उसको क्या कर पाएंगे, रिट्राइव कर पाएंगे, और रिट्राइव करने के बाद ही हम उसके ऊपर आगे कोई और ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं. देन डाटा कैप्चरिंग इन्वॉल्व द गैदरिंग ऑफ डाटा. ठीक है, कि आप डाटा को किस ढंग से गैदर करते हैं. ठीक है, तो डिफरेंट वे है हमारे पास डाटा गैदर करने के लिए. एग्जांपल हमारे कैप्चरिंग टू द बार कोड रीडर, आपने देखा होगा QR कोड रीडर आपके पास है. ठीक है, देन MICR. ठीक है, और ये डिफरेंट टाइप के जो डिवाइस हैं जिसके थ्रू हम डाटा को क्या कर सकते हैं, कैप्चर का मतलब क्या, हम एज ए हम उनको इनपुट ले लेते हैं. सो कैप्चरिंग इज़ वेरी form simple instructions like your keyboard barcode readers used to swapping outlets, for example component or post over the social media, remote sensors on the earth, orbiting satellites, etc. So sometime heterogeneity among the data source make the data capture so complex task. Then data storage. So data storage के अंदर है कि it is the process of storing the captured data for process later. So nowadays data is being processed at very high rate, so therefore the data storage has become the challengeable task. So, however, the decrease in the cost of your digital storage device, it happens in the simply this task. So there are numerous of digital storage device available in the market. ठीक है, तो क्या है, पेन ड्राइव आपके पास है, DVD है, CD है, SSD कार्ड हैं, मेमोरी कार्ड है, ये सारे के सारे हमारे डाटा इसके लिए स्टोरेज के लिए हम यूज़ करते हैं. डाटा रिट्राइवल होगा, इट इन्वॉल्व द फेचिंग डाटा फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइस. अब कि अगर हमारे पास मेमोरी कार्ड के अंदर डाटा है तो वहाँ से उसको कैसे रिट्राइव करना है, तो रिट्राइव करने के लिए हमें वो क्या चाहिए, मेमोरी कार्ड रीडर चाहिए. ठीक है, पेन ड्राइव के अंदर डाटा है तो हमें क्या चाहिए, USB पोर्ट चाहिए जहाँ पे हम उसके वहाँ से डाटा उसको ड्राइव कर रहे हैं. अगर हमारा CD के अंदर डाटा है या DVD के अंदर डाटा है तो हमारे सिस्टम के अंदर CD राइटर या DVD राइटर होना चाहिए. ठीक है, तो अगर रिट्राइव तभी कर पाएंगे अगर उस टाइप का हमारे पास क्या है, वो ऑलरेडी डिवाइस हमारे सिस्टम के अंदर अवेलेबल होगा. So database grow the challenging involve the search of retrieving of the data, so settles time to also increase. So minimizing data access time is crucial for the faster data processing. Minimizing the data access time. ठीक है, कि डाटा एक्सेस टाइम जितना क्या होगा, मिनिमम होगा उतना है, इज क्रूशियल फॉर फास्टर डाटा प्रोसेसिंग. तो यह डाटा रिट्राइवल्स. सो दिस इज ऑल अबाउट योर Tuesday lectures. So today we have studied about the memory, computer memory. In computer memory we have discussed your primary memory and secondary memory. In primary memory we have discussed about your RAM and ROM, and in secondary storage device we have discussed your different type of your storage device like your hard disk drive, pen drives, your memory card, storage SSD card. So then we have discussed your different type of data. In data we have discussed about what is data, different type of data, and the structured data, unstructured data, and semi structured data. Then we have studied about the data capturing, data storage, and data retrievals. So this is all. I hope you will able to understand these topics, and we will meet with in next class with new topics. Thank you. Have a nice day.